हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें हम कुछ सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि स्पीडली क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे कितने टाइम में हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, ताकि आप भी मेरे साथ अटेम्प्ट करते करते अपनी टाइम मैनेजमेंट को देख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके फीडबैक को कंसीडर करके आगे के लेक्चरों को हम और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 701, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन? दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल। 702, the competitive environment in which a few organizations producing essentially the same product is known as। वो competitive environment जिसमें सेम प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम है, वो कौन सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है? प्योर मोनोपोली, प्योर ओलिगोपोली, डिफरेंशिएशन एंड मोनोपोलिस्टिक। तो वो क्या होगा? प्योर ओलिगोपोली। Question number 703, management is viewed as, management is both discipline and process. Option number D is the right answer. According to Des, management is the art of getting things done through and with people in formally organized manner. किसने कहा है? ये कहा है पीटर ड्रकर ने। Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 705, F.W. Taylor related to scientific management, Dash related to administrative management. Henry Fayol is related to administrative management. Which of the following is one of the principle of scientific management? Replacing rule of thumb with science is the management principle. Moving on the next question. Question number 707. Spread the crops means union is strength. Which of the following is a graphical method of identifying alternative action, estimating probabilities, and indicating the result expected payoff? This is decision tree. Moving on the next question, 709. Which of the following help in achieving the balance between the cost associated with waiting time and ideal time? Waiting time और ideal time में बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या है इसमें से? वो है आपका क्विंग थ्योरी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज कॉल्ड ग्रेट मैन थ्योरी? कैरिस्मेटिक थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज नॉट नोन एज ग्रेट मैन थ्योरी। हु अमंग द फॉलोइंग गेव कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रोल? मैनेजमेंट रोल का कंसेप्ट दिया था मिंटसबर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गैंगप्लंग इज कंसर्न विद स्केलर चेन। Question number 713, Dash was against bureaucratic management and emphasized management with creative and innovative characteristics. कौन था अगेंस्ट में? अगेंस्ट में थे पीटर ड्रकर। The term MBO was coined in the year 1954. Joint venture is a nominal account. और जॉइंट बैंक क्या होगा? रियल अकाउंट। जॉइंट बैंक इज रियल अकाउंट। This is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. Recruitment. This is an example of esteem need. Status is an example of esteem need. Option number A is the right answer. Which of the following is not a monetary incentive? See, इसमें पूछा आपका नोट अ मॉनेटरी इंसेंटिव, जो कि मॉनेटरी नहीं है। तो यहाँ पे जॉब रोटेशन इज नॉट मॉनेटरी इंसेंटिव। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेपवाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 720, Dash is the art of getting things done through other people. Management is the art of getting things done from other people. Dash is the process of stimulating employees to get desired result. Motivating
is the process. Option number A is the right answer. Dash is called as father of scientific management. Frederick Wilson Taylor, F.W. Taylor is the father of scientific management. 723. Dash need emerge only when the basic physiological needs are satisfied. बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती हैं तो फिर कौन सी नीड आती है? सेफ्टी. सेफ्टी के बाद सोशल, देन सो ऑन. 724. इन डैश लीडरशिप कंप्लीट फ्रीडम इज गिवन टू एम्प्लॉय. फ्री रेन, और इसको बोलते हैं लेजी फ्री बी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. A statement that defines the reason or purpose of organization for its existence is referred as mission. Option number A is the right answer. मैं किसी भी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ. मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करें कल के एग्जाम के लिए. तो लेटर ऑन जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी वो मुझे वीडियो पे कमेंट करके बनाना. उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी. क्वेश्चन नंबर 726. डिपार्टमेंटेशन लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ. डिपार्टमेंटेशन में क्या किया जाता है? किसकी ग्रुपिंग की जाती है? एक्टिविटीज एंड पर्सनल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मैकग्रीगर थ्योरी डैश इज मॉडर्न, पॉजिटिव एंड डेमोक्रेटिव. पॉजिटिव और यू कैन से ऑप्टिमिस्टिक थ्योरी जो है वो है वाई थ्योरी, और एक्स थ्योरी क्या है? नेगेटिव, और यू कैन से पेसिमिस्टिक. एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड इज द फर्स्ट स्टेप इन डैश प्रोसेस. स्टैंडर्ड किस प्रोसेस में एस्टेब्लिश किए जाते हैं? कंट्रोलिंग. 729. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट. इनमें से कौन सा मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है? ध्यान दीजिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो. मैक्रो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैक्रो, स्पीडली देखना है. तो यहाँ पे मैक्रो में क्या आ जाएगा आपका? टेक्नोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओकेजन, बेनिफिट, यूजर, स्टेटस, यूसेज रेट, लॉयल्टी आर वेरिएबल ऑफ डैश सेगमेंटेशन. इन वेरिएबल के बेस पे कौन सा सेगमेंटेशन किया जाता है? दैट सेगमेंटेशन इज साइकोग्राफिक. ऑप्शन नंबर 731. A dash market consists of a set of buyers who share common needs or characteristics that the company decided to serve. उसको बोलते हैं आप टारगेट. क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है. जहां पे नीड होगी आई विल एक्सप्लेन. Using dash marketing strategy, a firm might decided to ignore market segmentation differentiation and target the whole market with one offer. सारी मार्केट को एक ऑफर से कहां पे टारगेट किया जाता है? अनडिफरेंशिएटेड मार्केट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 733. A product dash is the place the product occupy in consumer's mind relative to competitive product. तो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाना, एक प्लेस बनाना कस्टमर के माइंड में क्या कहलाता है? पोजीशनिंग. 734. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमबीओ. इनमें से मैनेजमेंट सॉरी इसमें से एमबीओ का पार्ट कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है मैनेजमेंट का? एमबीओ के बारे में अगर आप पढ़ा हो तो इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. पर्सनल सेटिस्फेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ एमबीओ. एमबीए का मीनिंग सबको पता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. 735. द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट इज नोन एज कंज्यूमर. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, डिस्पोज ऑफ, सर्विस, आइडिया, एक्सपीरियंस, वो क्या है? रिसर्च है, बिहेवियर है, गैदरिंग है, बाइंग है. तो वो क्या होगा आपका? वो होगा बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स. 736. प्रोडक्ट डैश इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल. एक पर्टिकुलर सेलर जो सेल के लिए ऑफर करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स. Which of the following is not a stage in product life cycle? इनमें से कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है?
माइनॉरिटी इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, और दूसरी क्या होती है, मेच्योरिटी, माइनॉरिटी नहीं होती। 738, a name, term, sign, symbol or design or a combination of them intended to identify the goods and services of one seller or group of seller and to differentiate them from competitor is known as। competitor से differentiate करना, कोई symbol, sign, term देना क्या कहलाता है, brand। 739, the amount of money and or other term with utility needs to acquire a product is called price। किसी भी चीज के लिए जो मनी वैल्यू दी जाती है उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एक्वायर करने के लिए क्या है वो, प्राइस। 740, डैश इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। तो फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स कौन पहुंचाता है, रिटेलर। तो वो प्रोसेस क्या हो गई, रिटेलिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 741, डैश इज द फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड मोस्ट एफिशिएंटली इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ बेनिफिट ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर। यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद हर साल आपको उसका फ्लो आता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। तो वो कौन सा डिसीजन है, कैपिटल बस्टिंग। फिक्स एसेट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका यूज करके फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स तक उसका फ्लो का एडवांटेज कंपनी गेट करती है। 742, डैश इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर की जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 743, if rate of interest is 9%, calculate doubling period as rule 72। doubling period means अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगी। सपोज अगर 100 है तो कितने टाइम में 200 हो जाएगा, अगर 300 है तो कितने टाइम में 600 हो जाएगा। तो डबलिंग का रेट क्या होता है, 72 अपॉन, अगर आपको टाइम निकालना है तो 72 अपॉन रेट, और रेट निकालना होता तो 72 अपॉन टाइम। तो हमारे पास रेट है 72 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 80। 74, if working capital is this, current ratio is 3 means 3:1, calculate current assets। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से आप वर्किंग कैपिटल से वैल्यू निकाल देंगे एक की दोनों में से। ये आपको दिया हुआ है 5 लाख और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो करंट एसेट्स क्या हो गया, 5 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि 3 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन 5 प्लस करंट लायबिलिटी। ये 5 मतलब क्या, 5 लाख। इतना क्लियर है। एक मिनट, थोड़ा सा एरर हो गया इसमें जल्दी के चक्कर में। 80 मिनट, चलो मैं यहीं पे कर देती हूँ इसको कट करके। सी एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए इसको। रेशो क्या होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल से हमने निकाला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये अपना फॉर्मूला लिखा। वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, यहाँ से करंट एसेट्स की वैल्यू निकाली, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 5 लाख प्लस करंट लायबिलिटी। अब उसमें पुट कीजिए करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स यानी कि 5 लाख प्लस करंट लायबिलिटी अपॉन करंट लायबिलिटी। इसको सोल्व करोगे 3 माइनस 2 यानी कि 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 5 लाख, और इसको डिवाइड किया तो करंट लायबिलिटी आ गई 2,50,000। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2,50,000 क्या आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। आपसे क्वेश्चन में पूछा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या थी, करंट लायबिलिटी प्लस 5 लाख। 2,50,000 में 5 लाख ऐड करोगे यू विल गेट 7,50,000, यानी कि 744 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर। आप इसको ओरली और भी स्पीड में कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बताने के पर्पज से आपको कुछ चीजें लिख के दिखा रही हूँ। 745,
Dash debentures are those debentures that are repaid after specific time. एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जिनको रिपे करना होता है उनको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट. सबको पता है ये. 747 डैश इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. रिटेन अर्निंग इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. 748 cost of capital is the dash required rate of return expected by investor. cost of capital क्या है? minimum rate of return, जो कि इन्वेस्टर चाहता है एटलीस्ट इतना तो गेट हो ही हो उसे. the discount rate at which present value of cash inflow equal to present value of cash outflow. वो रेट जिसपे इनफ्लो और आउटफ्लो की रेट सेम होती है. कौन सी? प्रेजेंट वैल्यू. इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है, उसको बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 750. डैश रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू अ जॉब. एक जॉब को करने के लिए क्या ह्यूमन क्वालिटीज की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन. और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या जॉब लोकेशन होगी, क्या डेजिग्नेशन होगी, वो सब चीजें आती हैं. 751 डैश इज कंसर्न विथ पिकिंग द राइट कैंडिडेट फॉर पूल ऑफ एप्लीकेशन. राइट कैंडिडेट को चूज करना क्या है? सिलेक्शन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 752. डैश रेफर्स टू अ वर्टिकल मूव इन रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए वर्टिकल मूव की बात हो रही है, तो वो किससे होता है? आपका प्रमोशन. 753 बिहेवियर एंकोर रेटिंग स्केल इज ऑल्सो नोन एज बार्स. ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका होता है. 754 पेयर्ड कंपैरिजन इज मेथड ऑफ. ये भी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है. Moving on the next question, question number 755. Industrial Dispute Act was enacted in. Industrial Dispute Act enacted in 1947. Which of the following objective related to human resource management? इनमें से कौन सा human resource management का objective है? Societal objective, production objective, personal objective, both A and C. Both A and C is the right answer. 757 dash refers to the process of finding and attracting capable of applicant for employment. See, कह रहा dash refers to the process of finding यानी कि ढूंढना और उनको अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करना, वो क्या है? रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 758. Which of the following is not related to non monetary benefit? इसमें से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कौन सा नहीं है? एक्सीडेंटल रिलीफ इज नॉट अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, क्योंकि स्टेटस नॉन मॉनेटरी है, रिकॉग्निशन नॉन मॉनेटरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नॉन मॉनेटरी है. एबीसी एनालिसिस एम फॉर. जो आपकी एबीसी एनालिसिस टेक्निक है उसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक भी कहते हैं. और कई बार आपसे पूछे कि भाई एबीसी का फुल फॉर्म और क्या हो सकता है? एबीसी मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल. Question number 716. Dash index of globalizations measure economic, social, political and overall globalization. ये आपका वर्ल्ड इंडेक्स है जो कि कौन सा है? KOF इंडेक्स. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 761. डैश इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. इनमें से ग्लोबलाइजेशन की ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? नहीं है, पूछा है. तो डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट बैरियर और ये सब FDI सबसे ग्लोबलाइजेशन होगा, वर्ल्ड वार से ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा. GATT इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 763. डैश कंपनी इज जियोसेंट्रिक इन इट्स ओरिएंटेशन. जियोसेंट्रिक मीन्स यूनिवर्सल, जो सब जगह एक ही जैसा
ब्रांड और नाम यूज करती है, ट्रांसनेशनल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 764 अकॉर्डिंग टू डेस थ्योरी ऑफ लीडरशिप लीडर्स आर बोर्न। लीडर्स आर बोर्न अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 765 dash can be simply defined as systematic method of handling activities. Process can be simply defined as the systematic method of handling activities. 766 dash is the first stage of internationalization. Domestic is the first stage of internationalization. देखिए पहले होता है डोमेस्टिक, फिर होता है इंटरनेशनल, फिर होता है मल्टीनेशनल, फिर होता है ग्लोबल, फिर ट्रांसनेशनल। IBRD इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। IBRD का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। और बाकी जो इसकी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि बाकी सारे कामों को देखती हैं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 768 द प्रिंसिपल ऑफ डैश assign the duty to ensure to take all the steps to minimize the loss to the subject matter of insurance। अगर कोई हैपनिंग होती है तो जो इंश्योरर है उसको पूरी कोशिश करनी है कि जो लॉस है वो कम से कम हो। कौन सा प्रिंसिपल है? ये है मिटिगेशन ऑफ लॉस प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 769 a dash is known as a dash asset is known as remain NPA for a period of exceeding 12 month। अगर 12 मंथ का पीरियड एक्सीड हो जाता है तो एनपीए की कौन सी एसेट होती है? डाउटफुल डेब्ट्स, सॉरी डाउटफुल एसेट। क्वेश्चन नंबर 770 विच टर्म in fuel 14 principle of management states that material and people should be in right place at right time। जो फ्यूल के 14 प्रिंसिपल है उनमें से कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है राइट चीज राइट टाइम पे होनी चाहिए, राइट प्लेस पे होनी चाहिए? वो है आपका ऑर्डर प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 771 Dash is the rate at which one bank borrow money from another bank for short term requirement। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है तो एक बैंक दूसरे बैंक से जिस रेट पर उधार लेता है शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या है? कॉल रेट। Dash is a contract whereby in consideration of premium paid in lump sum or installment the insurer undertakes to pay an amount on death of insured or expiry of the period। वो क्या होता है आपका? लाइफ इंश्योरेंस। या तो डेथ पे या पीरियड जितने भी 5 साल 10 साल जितने भी टाइम पीरियड के लिए लिया गया है उसके बाद वो पेमेंट हो जाती है। 773 द स्टेट हैज डैश ऑफ स्टेक इन रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी में स्टेट का कितना शेयर है? 15%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर सेंटर का शेयर पूछे तो सेंटर का शेयर कितना है? 50%। हमसे स्टेट का पूछा था, स्टेट का 15% है और सेंटर का कितना है? 50%। और अदर बैलेंस जो है अदर नेशनलाइज बैंक। 774 डैश रेफर्स टू कैश that bank have to maintain with RBI as a total percentage of their total demand and time liability। जो बैंकों के पास टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी का डिपॉजिट है वो उसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई के पास मेंटेन रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 775 हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स वाज कैरीड आउट फॉर डैश लॉन्ग ईयर। कितने ईयर तक किया गया था? 8 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 776 according to generic electric 9-cell matrix for the dash zone the signal is stop which indicate retrenchment strategies of de-investment and liquidation or rebuilding approach for adopting turnout strategy। ये पूरा आप सेल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा इंडिकेट करता है? रेड सेल।
रेड सेल ये इंडिकेट करता है कि भाई ये रिट्रेसमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 777, द बेसिक प्रिंसिपल टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज आर सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तीनों के तीनों क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 778, dash could be considered as an entity resulting from a long-term contractual agreement between two or more parties। दो या दो से ज्यादा अधिक पार्टियां जो है जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन करती हैं उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 779, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल प्रेस्क्राइब अंडर द रोल अप्रोच। इनमें से रोल अप्रोच में कौन सा रोल प्रेस्क्राइब नहीं किया गया? लीडर है, स्पोक पर्सन है, मॉनिटर है, स्पेकुलेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 780, डैश इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट अफेक्टिंग देयर बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसको क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट स्कैनिंग। 781, according to BCG metrics, the business unit with low growth rate still high market share refers to। low growth और high market share किसका होता है? cash cow। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 782, the structure that involve dividing the total work according to different product line, customers और geographical area is called divisional structure। और हर डिवीजन का जो हेड होता है वो अपनी यूनिट के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अकाउंटेबल होता है। 783, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 784, the objective of dash is to ensure as far as possible the interest of stakeholder enable individual corporate and society। देखिए the objective of dash किसका ऑब्जेक्टिव होता है? इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर अनेबल इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी। यानी कि स्टेक होल्डर आप सिंपली ले सकते हो स्टेक होल्डर के लिए किसका इंटरेस्ट होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 785, dash denote what an organization hopes to accomplish in a future period of time। फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करेगी, क्या होता है जिसको फ्यूचर टाइम में अचीव करना है उसको बोलते हैं गोल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 786, द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आर ट्रांसफर टू। रीइश्यू के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। The basic rule of bookkeeping, debit all expenses and losses, credit and all incomes and gain is applicable to nominal account। ये तो सभी को पता होगा। This is the base of accounting। क्वेश्चन नंबर 788, accounting is concerned with। accounting हमेशा सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से कंसर्न करती है। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। और कई बार क्वेश्चन आता है, पीछे लेक्चर में भी मैंने करा रखा है, इन्फ्लेशन यानी कि राइजिंग प्राइस में कौन सा स्टॉक इशू का तरीका अपनाना चाहिए? लिफो। 790, फॉलोइंग इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों के तीनों क्या है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। Then 792, dash capital is taken up by the general public। जो पब्लिक है वो कौन सी कैपिटल लेती है? वो सब्सक्राइब करती है इशूड कैपिटल। 793, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड। डबल एंट्री सिस्टम में कैश और एक्रूवल दोनों को कंसीडर किया जाता है। डैश कंटेन द पिक्चर ऑफ टोटल प्लांट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड and it comprises information related to sales, profit, cost and production। सारी इंफॉर्मेशन होती है सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको बोलते हैं मास्टर बजट।
Moving on the next question, question number 795. The primary goal of management accounting is. Management accounting का primary goal क्या होता है? Provide information for planning, decision making, etc. 796. Variance is always unfavorable. कौन सा variance हमेशा unfavorable होता है? Ideal time variance हमेशा unfavorable होता है. 797. When sales are rupees 2 lakh, fixed cost is 30,000, PV is 40%, the amount of profit is. देखिए PV रेशो क्या होता है? PV रेशो आपका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. ये आपको 40% दिया हुआ है, इंटू 100 होता है, तो इसी के नीचे लगा दीजिए 100. सेल्स आपको 2 लाख गिवन है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे आप 20, यहाँ से निकल जाएगा ये 80,000. कंट्रीब्यूशन 80,000 है और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको फिक्स एसेट दी हुई है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस प्रॉफिट. तो कंट्रीब्यूशन 80 है, फिक्स एसेट 30 है, 80 में से 30 लेस किया तो क्या आ गया आपका? आपका आ गया 50,000. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. फिक्स कॉस्ट 5 लाख है, पीवी रेशियो 40% है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट है आपकी 5 लाख, पीवी रेशियो है आपका 40%, यानी कि 0.40 हटाया और इसको किया तो ये आ गया 12,50,000. 2 1 जा 2, 2 2 4 2 जा 8 और 5, 12,50,000. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 799. When the same brand name holds several products in different market is known as. हर मार्केट में सेम ही ब्रांड नेम अगर यूज किया जा रहा है, अलग अलग नाम यूज नहीं किया जा रहा, तो उसको बोलते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ग्रोस कैपिटल इक्वल्स टू. ग्रोस कैपिटल किसके इक्वल होती है? ग्रोस कैपिटल इक्वल होती है टोटल ऑफ करंट एसेट्स. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो दोस्तों ये थे कुछ 100 क्वेश्चन. सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अपडेट जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.